हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय मजदूर संघ के श्री गिरीश चंद आचार्य जी, इंचार्ज फाइनेंशियल सेक्टर बीएमएस के, इन्होंने एक लेटर जो डीए डिस्पैरिटी है उस पर भी लिखा भारत सरकार को, और ये दूसरा लेटर लिखा है इन्होंने एक्स ग्रेसिया अमाउंट रिव्यू फॉर बैंक पेंशनर्स। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आईबीए कह करके मुकर गया, लिखित में था एनुअल रिव्यू होगा, और जब रिव्यू की बात आई तो बोले भाई नहीं नहीं नहीं, हमने ये नहीं कहा था, हम तो ये कहा था एक बार ही देंगे 2027 तक। अब ये कंट्रोवर्शियल हो गया। आईबीए कुछ शर्त निकालता है, कोई कुछ शर्त निकालता है, लेकिन फिर भी इसके पीछे हमारे बैंक पेंशनर पड़े हुए हैं, लिखते रहते हैं। और आचार्य ने भी एक लेटर लिखा श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को, और ये 17/4/2026 का लेटर है, मजदूर संघ का है। ये आर्य साहब बैठे हुए हैं। दोस्तों मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या है, और बता दूं मैं आपको, काफ़ी संगठनों ने और काफ़ी लोगों ने रेलिवेंट एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज के लिए, जो अभी केरला हाई कोर्ट का जो फैसला आया था डिस्पैरिटी इन डीए सर्विंग और रिटायर्ड डीए डीआर में, बहुत लेटर लिखे जा चुके हैं। हमने कई लेटर डाल दिए हैं और आज भी हम कुछ लेटर डालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो लेटर हैं आते जा रहे हैं। हमने कहा किसी के हों तो जाओ, हम यहाँ बताते हैं कि किस किस ने क्या क्या लिखा है। अब क्यों लेटर लिखना तो ज़रूरी है, नॉलेज में लाना भी ज़रूरी है, सिर्फ वो चीज़ वो पड़ी रह जाएगी फिर कौन पूछेगा। चलो अभी एक्सरे से बात कर लेते हैं। और उससे पहले इन्होंने जो डीए डीआर पर जो डिस्पैरिटी थी, डिस्क्रिमिनेशन था, उसके बारे में पत्र लिखा था। कहते हैं, रिस्पेक्टेड सिस्टर, नमस्ते, वी रिस्पेक्टफुली ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द बैंक पेंशनर्स whose boos are not decreasing. The situation is worsening day by day, as they are deprived of their right to pension updation and health security. You might be aware that the bank management did not do pension updation in the wage settlement concluded on 8/3/2024 on the pretext that the matter is sub judice on the court. Sub judice was their rational excuse, because despite the issue of special allowance being sub judice since 25/5/2015, the bank management increased the special allowance in the 11th and 12th wage settlement concluded on 11 November 2020 and 8/3/2024. This double standard of the bank management is unjustifiable. For your kind post your kind stance in the light of the pending pension updation, consideration was given to giving same relief amount to the pensioners to pull them out of their deep frustration to some extent. A paltry amount of 1% was allocated as relief to pensioners compared to 17% of the wage load for the working bank employees. All pensioners up to 31/10/2022 are getting ex gratia amount from 11/2022. There is a provision in agreement for annual review of the ex gratia amount from April 2024. The provision for annual review of the ex gratia amount has been made as no DR is being given on the ex gratia amount. To maintain the purchasing power of the ex gratia amount, its annually review has been prescribed, when the bank's management have not done till now, and the pensioners are getting the prescribed ex gratia amount on the basis of pension of October 2022 as on date. As per the agreement dated 8/3/2024, review of the ex gratia amount was due in April 2024, April 2025, April 2026. Bank management is not doing anything in this regard, which is a matter of grave concern among the pensioners. We humbly request your kind intervention. You are requested to issue appropriate orders to the bank's management and to review the ex gratia amount on annual basis for April 2024, April 2025 and April 2026, respecting the agreement of 8/3/2024 and per day, and pay the increased ex gratia amount to the pensioners. We look to your swift and kind action in this regard to alleviate the boos of the bank pensioners. With respected
रिस्पेक्टफुल रिगार्ड्स, योर सिंसियरली गिरीश चंद्र आर्या, इंचार्ज फाइनेंशियल सेक्टर। दोस्तों, काफ़ी इफेक्टिव और बहुत ही एलिगेंट लेटर आर्या जी ने लिखा है, हर चीज़ को इसमें कवर कर लिया है। अब ये सबको पता है कि IBA कह करके मुकर गया। 8/3/2024 के जो फाइनल इनका सिग्नेचर हुए तो उनमें था कि एक्स-ग्रेशिया को एनुअली ईयरली रिव्यू किया जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब क्योंकि एग्जीक्यूटिव उनके हाथ में ताकत है, नहीं करें क्या कर सकते हो। और तरह तरह के ये बहाने लेते हैं, क्योंकि ये पेंशन अपडेशन सब जुडिस इसलिए नहीं बढ़ा सकते। तो साथ में ये कहा, भैया 2 स्टैंडर्ड क्यों करते हो, फिर आपने स्पेशल अलाउंस क्यों बढ़ाया जब वो भी तो सब जुडिस है। इस प्रकार की बातें चल रही हैं। अब ये क्योंकि लेटर है, हम चाहते थे कि आप तक पहुँचे, सोशल मीडिया में आए, पता चले कि IBA कर क्या रहा है। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू धन्यवाद।